Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 33. We are discussing the unit number 7, that is about vectors, and today's topic is vectors in plane, and the learning outcomes are the students will be able to find the position vector of a point which divides the line segment joining two points in a given ratio, and also the students will be able to recognize all properties of vectors using analytical representation. So these are the two learning outcomes, and we will start our lecture. The first question is, when two vectors are said to be equal, मतलब कि आपके पास अगर दो vectors हो तो वो कब equal होते हैं. So we have discussed this in previous lectures. You can recall this. The definition of equal vectors: if the vectors have the same length, if two vectors have the same length and the same direction, then they are said to be equal. लेकिन अगर आपके पास दो vectors हैं, उनकी same length हो, same length means same magnitude, उनकी magnitude same हो और उनकी direction भी same हो, तो आप कहेंगे वो दोनों vectors क्या हैं, they are equal. और उसको आप कैसे कहेंगे, अब ये vector B है और ये vector C है, so this can be written as B is equal to C. The length of the vector is called its magnitude. मतलब length का मतलब है उसकी magnitude, और आपको पता है magnitude आप किस तरह find करते हैं. So we have also discussed कि जब दो vectors equal होते हैं, इसका मतलब है इस जो आपके पास b वेक्टर का x कंपोनेंट c वेक्टर के x कंपोनेंट के बराबर होता है और इसका y कंपोनेंट b का y कंपोनेंट c के y कंपोनेंट के बराबर होता है. तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स जो है, दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे अगर वो वेक्टर्स इक्वल है. So two parallel vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude. Again आपके पास वही definition है कि अगर उनका magnitude same हो, direction same हो, तो आपके पास वो क्या कहलाते हैं, equal vectors कहलाते हैं. Again in this slide also the equal vectors are parallel if they have the same direction. अगर उनकी same direction होंगी तो वो आपके पास parallel होंगे. And vectors that have in opposite direction are negatives. Means अगर आपके पास एक vector है a b, तो अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो बेसिकली ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स बन जाएंगे. फॉर एग्जांपल दिस बी ए इज इक्वल टू माइनस ए ऑफ बी, मतलब कि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे बट the minus sign indicates that it is an opposite direction. Okay, so AB and BA have the same length, means same magnitude, but they have opposite direction. We say that BA is a negative of AB, and we can write it as BA vector is equal to minus of AB. Okay, the minus sign indicating that its directions is opposite. So this is basically the equal vectors and negative of vectors. And today the most important thing we have to discuss is the ratio formula. Okay, what is the ratio formula and why we need this formula? Today we will discuss these two things. The ratio formula. Okay, let A and B be 2 points. ठीक है, आपके पास दो points हैं, वो A और B हैं, whose position vectors, अगर उनके position vectors कौन कौन से हैं, आर ए एंड बी, मतलब कि दो वेक्टर्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी. इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक ओरिजिन है, उसका आपके पास उससे जो वेक्टर पॉइंट ए है, इसको अगर आपने ज्वाइन किया तो आपके पास एक वेक्टर बनता है ओ ए, वो आपने उसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल ए, उसको रिप्रेजेंट किया. इसी तरह आपके पास एक और पॉइंट बी है, जब ओरिजिन को उससे मैच किया तो ये वेक्टर बना आपके पास ओ बी, और ओ बी को आपने किसे रिप्रेजेंट किया, स्मॉल बी से. ये आपके पास दो आपके पास वेक्टर्स गिवन थे. कहता है इफ द पॉइंट्स पी, आपके पास एक पॉइंट पी है, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ पी क्यू, मतलब कि आपने अगर ए और बी को ज्वाइन कर दें तो ये एक और वेक्टर बन जाता है. और इसके ऊपर एक पॉइंट पी है आपके पास, मैं रेस करता हूँ ताकि जरा इजी जाए. ये ए बी जो वेक्टर है इसके ऊपर एक पॉइंट पी है, दिस वन, इस पॉइंट पी की बात की जा रही है, जो कि इस ए बी को, जो ये लाइन ए बी थी, इसको डिवाइड कर रहा है किसमें, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. और रेशियो कौन सी है, वो पी एंड क्यू, मतलब कि ये इसकी पी पार्ट है और ये इसका क्यू पार्ट है, मतलब कि इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है. देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो इसका मतलब है अगर इस पी पॉइंट को अगर आप मिला दें ओ से, तो एक ये पोजीशन वेक्टर बनेगा ओ पी, उसको आपने आर से रिप्रेजेंट किया, मतलब स्मॉल आर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन वेक्टर ओ पी, मतलब कि ओ पी का पोजीशन वेक्टर आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जो पोजीशन वेक्टर आर होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे आप, आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ ए, मतलब कि ये जो आपके पास क्यू, आपके पास ये रेशियो वाला पार्ट है, ये आपको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई हो, प्लस पी ऑफ बी, मतलब कि और ये जो पी वाला पार्ट था ये आपके सामने वाले साइड वेक्टर बी से मल्टीप्लाई हो, और डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू, और जिस रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है उन रेशियो के सम से उसको डिवाइड करते हैं, मतलब कि ये रेशियो पी और क्यू जिस रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है उन दोनों से आपको डिवाइड कर दें. सो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट द पोजीशन वेक्टर आर which divide a line segment into ratio p and q. इस तरह आप ये पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं. अब इसको हम देखते हैं बेसिकली
इसका प्रूफ देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रूफ है। कहता है गिवन ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। हमारे पास ये गिवन है कि ओ ए जो हमारे पास एक वेक्टर है, उसका जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर वो क्या है, स्मॉल ए है। ये आपके पास गिवन है कि स्मॉल ए जो है इसका पोजीशन वेक्टर है और स्मॉल बी जो है वो ओ बी का पोजीशन वेक्टर है। लेट आर, हम क्या करते हैं कि जो हमने फाइंड करना है इस ओ पी का, जो हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं आर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू रेशियो पी एंड क्यू। तो ये आपके पास एक पॉइंट पी है जो आपके पास इस ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो पी एंड क्यू। पी एंड क्यू कोई भी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जनरली हम बात कर रहे हैं पी और क्यू कुछ भी हो सकता है। तो पी एंड क्यू में डिवाइड कर रहा है, दैट इज। तो आप यहाँ से देखें, आप इस फिगर, बेसिकली जो फिगर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर से सारा हमने प्रूव करना है कि मैयर ऑफ ए पी, मतलब कि अगर आपके पास ये आप लेंथ देखें मैयर ऑफ ए पी और मैयर ऑफ पी बी, मतलब कि हम इन दोनों की अगर रेशो लें, ठीक है, मतलब कि ए पी, मतलब कि ये जो लेंथ है ए पी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम डिफरेंट कलर से जरा इंडिकेट कर लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए कि मैं इस ए पी की बात कर रहा हूँ, दिस ए पी, मैयर ऑफ ए पी का मतलब है इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, और नेक्स्ट जो लेंथ बात कर रहा हूँ वो इस पी और बी की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, ये क्या है, ये इसका पार्ट पी है और ये इसका पार्ट क्यू। मतलब कि अगर मैं इन दोनों की रेशियो लेता हूँ बेटा, मीन्स अगर मैं इन दोनों की रेशियो लेता हूँ वो किसके बराबर है, पी एंड क्यू के रेशियो के। और आपको पता है रेशियो में क्या करते हैं, अगर पी रेशियो क्यू लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब है, डिवीजन है बेसिकली, कि इसको हम लिख सकता हूँ पी बाई क्यू लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया बेटा, ये मैयर ऑफ ए पी रेशियो मैयर ऑफ पी बी, इसको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया और इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब ये दो आपके पास फ्रैक्शन, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड भी फ्रैक्शन है, दोनों साइडों पे आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्यू आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और ये पी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास बन गया क्यू इंटू मैयर ऑफ ए पी और पी इंटू मैयर ऑफ पी बी। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है कि हमने क्या लिया, इस लाइन जो हमने ए जिस जिस लाइन को डिवाइड कर रहा था, जिस वेक्टर को डिवाइड कर रहा था पॉइंट पी, उसकी बेसिकली मैंने क्या किया, जो जिस पार्ट में डिवाइड कर रहा था उन दोनों की रेशियो ले ली और इन टर्म्स ऑफ किस किस पार्ट में डिवाइड कर रहा था उसकी रेशियो ले ली, इसको इक्वल कर दिया और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब बेसिकली हम चैप्टर्स को, हम वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस जो ए पी को मैंने एज अ वेक्टर कंसीडर कर लिया कि ये वेक्टर ए पी है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको ए पी वेक्टर लिख दिया और इस तरह पी बी को भी मैंने क्या कर दिया, वेक्टर लिख दिया। और ये जो पी और क्यू है ये तो हमारे पास नंबर्स हैं कोई, जिसमें ये लाइन डिवाइड हो रही, तो ये आपके पास पी एंड क्यू वैसे ही रहेंगे। अब ए पी वेक्टर आपने फाइंड करना है बेटा, ए पी वेक्टर, इसका मतलब है ए पी वेक्टर क्या है आपके पास, इसका मतलब है पी के कोऑर्डिनेट से ए के कोऑर्डिनेट्स, तो इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ ए मींस, ओके। तो ओ पी क्या आपने, ओ पी आपने खुद कंसीडर किया हुआ है, लेट किया हुआ है, वो क्या आर, इसका मतलब ये क्या रहेगा आर, और ओ ए क्या आपके पास, ओ ए आपके पास गिवन है ए, इसका मतलब है ए पी का आंसर क्या आ गया, आर माइनस ए आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक कि हमने जो ए पी वो कैसे फाइंड किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो इस तरह हमने आर माइनस ए इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट पी बी फाइंड करते हैं। ओके, सो पी बी कैसे फाइंड करेंगे बेटा, पी बी फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, देखें, अब हमने पी बी फाइंड करना है, पी बी फैक्टर, ओके दिस वन, ये वाला वेक्टर मैं फाइंड करने लगा पी बी। तो पी बी का मतलब है आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब कि ओ बी माइनस ओ पी, क्योंकि बी बाद सेकंड में है तो इसका मतलब बी पहले और आएगा और पी में से पी के कोऑर्डिनेट्स में तो माइनस होंगे। तो ओ बी क्या आपके पास, ओ बी स्मॉल बी माइनस ओ पी आपने खुद कंसिडर किया हुआ वो क्या आर, तो बी माइनस आर इसका आंसर आ गई है। ये आपको समझ आ गई है, आर माइनस ए और बी माइनस आर किस तरह फाइंड किया हमने, जस्ट पोजीशन वेक्टर को यूज करते हुए हमने वो इनकी वैल्यूज फाइंड की। अब देखें, अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है, क्यू को आर से मल्टीप्लाई किया और क्यू को ए से मल्टीप्लाई किया, इस तरह पी को बी से मल्टीप्लाई किया, पी को आर से मल्टीप्लाई किया। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है आर फाइंड करना। तो आप क्या करेंगे, आर वाले टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे और उनको जो है आर कॉमन लेके उसको आप जो है बाकी टर्म्स को एक साइड पे ले आएंगे। तो देखें ये पी आर यहाँ मौजूद था, ये आपके पास पी आर है और यहाँ क्यू आर है, ये पी आर माइनस है, तो मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आऊँ, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँ बेटा, तो इसको क्यू आर के साथ मैंने ऐड किया, तो बेसिकली क्या आ गया, आर कॉमन आ गया, तो पी प्लस क्यू यहाँ आ गया। अब ये आर की वैल्यू चाहिए मुझे, तो पी प्लस क्यू जो है वो यहाँ के डिवाइड हो गया, तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया कि आर पोजीशन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यू ऑफ ए मतलब कि ये जो आपके पास रेशियो वाला पार्ट है ये सामने वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इनटू पी ये वाला जो आपके पास पार्ट है रेशियो वाला, ये आपके पास डिवाइड होगा आपके पास इस वाले वेक्टर से, और इन दोनों को ऊपर आप सम करेंगे और डिवाइड करेंगे, इन दोनों जो रेशियो वाले पार्ट है इन दोनों को सम करके उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास वो आर पोजीशन वेक्टर है जो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, जो एक लाइन ए बी को डिवाइड कर रही है दो किसी भी रेशियो के अंदर। सो दिस इज बेसिकली ये रेशियो फार्मूला, ये आपके पास हमने यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर।
तो इसको आपने अच्छी तरह देखना है, इसके प्रूफ को भी, प्रूफ भी इसका इंपॉर्टेंट है बेटा। जी बेटा, इसको आप सेकंड फार्मूला भी कहते हैं जो हमने रेशियो फार्मूला पढ़ा है, ठीक है बेटा। तो ये दो तरह का होता है कि अगर आप एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड करें उसमें भी आप उसको देखते हैं, और अगर एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करें तो जो हमने जो बेसिकली अभी देखा है वो सिर्फ ये देखा है कि एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड करें तो आप किस तरह उसका फार्मूला लिखते हैं। तो ये अगेन स्लाइड में भी यही बताया गया। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास P इज अ मिड पॉइंट बन जाए, मतलब कि ये लाइन ए बी थी आपके पास, उसका जो है P जो है मिड पॉइंट बन जाए, मतलब कि यहाँ भी डिस्टेंस सेम हो, इधर भी डिस्टेंस सेम हो, देन P रेशियो Q हमें पता है वो क्या हो जाएगा, 1:1, मतलब कि जो भी साइड, लेट करो अगर 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो 2 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 1:1 आएगा। तो P भी 1 है और Q भी 1 है। देन जो फार्मूला बन जाएगा, जो आपके पास जो R की वैल्यू होगी, क्योंकि आपके पास P की वैल्यू भी 1 है, Q की वैल्यू 1, तो आपके पास ये पोजीशन वेक्टर R बन जाएगा इज इक्वल टू A प्लस B, दोनों वेक्टर्स को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास वो पोजीशन वेक्टर R की वैल्यू आ जाएगी, जो आपके पास जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो दिस इज the formula when the P is a midpoint of a given line AB, अगर वो मिड पॉइंट बन जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ओके, मींस के P रेशियो Q जो है 1:1 बन जाएगी आपके पास। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज थी जो आप लोगों को इसको क्लियर होनी चाहिए। जी बेटा, अब हमारा टारगेट एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 11 12 जो आज हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी 11 देखें, आपके पास जो क्वेश्चन है जैसे हमें प्रीवियस हम क्वेश्चंस किए थे उसी की तरह है कि अगर आपके पास दो वेक्टर कहता है इक्वल है ए बी एंड सी डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, मतलब कि इसमें जो आपके पास ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं, जबकि बी और सी डी तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो ये जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 9 किया आपने, सिमिलर टू दैट है। तो ये बेसिकली आपका एज अ होमवर्क है कि आपने इसको ट्राई करना और देखना है कि ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा आज टारगेट है, जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा, रेशियो फार्मूला, उसको यूज करते हुए हमें ये क्वेश्चन करना है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर, आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। ओके, पॉइंट सी है बेसिकली जो कि एक लाइन को डिवाइड कर रहा है विद पोजीशन वेक्टर जो है आपके पास, जो डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आपके पास ये है, एंड डी विद द पोजीशन वेक्टर दिस इन द रेशियो 4:3, मतलब कि इसको आप 4:3 में वो डिवाइड कर रहा है। तो हमने बेसिकली इसका पोजीशन वेक्टर जो जिस पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो हमने फाइंड करना है। तो ये टारगेट, इसी तरह हमारे पास पॉइंट ई हमने फाइंड करना है जो सेकंड पार्ट में। तो इसको देखते हैं बेटा हम कैसे सॉल्व करना है इसको हमने। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि बेसिकली क्या करना है आपने, जो ए के कोऑर्डिनेट्स है उसको लेट कर लेना आपने, कि लेट करें एक्स और वाई जो है आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, और उसको फिर बाकी तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट लेट कर लिए, फिर आपने बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ वेक्टर ए बी कैसे फाइंड करेंगे और सी डी कैसे फाइंड करेंगे, और फिर बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स आपने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये जस्ट आपने खुद करना है इसको, प्रॉब्लम होगी तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा टारगेट है कि बेसिकली फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ अ डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ओके, सो इसमें हम बेसिकली क्या हमने करना है बेटा, देखें कि हमारे पास जो ये हमारे पास है एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है, और ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनके हमारे पास वेक्टर्स गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है। जो पॉइंट सी है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास 2i-3j, मतलब कि ये जो आपके पास जिसको आपने ए का नाम देते हैं, जिससे हमने लास्ट जब प्रूफ में देखा कि इसका पोजीशन वेक्टर जो ओ सी है वो ए है, तो ए का बेसिकली आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ 2i-3j, मतलब कि ये आपके पास इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू की बात की जा रही है। और जो पॉइंट डी है तो उसकी पोजीशन वेक्टर की बात की जाए तो वो बेसिकली जो ओ डी है उसको जैसे बी से रिप्रेजेंट किया था हमने, उसकी वैल्यू क्या है 3i+2j, मतलब कि ये दोनों जो वेक्टर्स हमारे पास हैं जो उसकी पोजीशन वेक्टर की बात की थी वो दोनों आपको गिवन है। सी जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर उसकी वैल्यू है 2i-3j, और ये जो आपके पास बी वेक्टर है उसकी वैल्यू है 3i+2j। और किस रेशियो में आपके पास डिवाइड कर रहे हैं जो पॉइंट, वो डिवाइड कर रहा है इसको 4:3 में। तो हमारे पास ये पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर हमने आर जिसको हमने कहा था वो मालूम करना है, वो फाइंड करना है। और ये किस में डिवाइड कर रहा है, असल में जो P है आपके पास वो क्या है 4, और Q है वो क्या आपके पास वो 3 है, और दोनों वेक्टर्स जो आपके पास A और B वो भी आपके पास हैं। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा था बेटा, तो क्या फार्मूला पढ़ा है, ये फार्मूला पढ़ा हमने कि Q ऑफ A, मतलब कि ये जो Q होता है ये सामने वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है इसकी वैल्यू, और ये जो P होता है वो B से मल्टीप्लाई होता है, और इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय P प्लस Q, मतलब कि दोनों की वैल्यू को प्लस कर दें, मतलब 4 + 3 7 से आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने सपोज किया हुआ है,
इसको रेस करके जरा एक दफा क्लियर कर लेते हैं कि लेट करें ए जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है और वो गिवन है आपके पास 2i-3j, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आपके पास आई और जे वेक्टर गिवन है, और बी इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, उसको स्मॉल आपने बी से रिप्रेजेंट किया था, और वो आपके पास 3i+2j ये गिवन है। ये दोनों वेक्टर्स आपके पास गिवन है। लेट जो आपने फाइंड कर, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, जो ये पॉइंट पी जो डिवाइड कर रहा है सी डी लाइन को, वी डिवाइड द लाइन द रेशियो ऑफ 4:3, 4 बेसिकली पी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 क्यू को, इन द रेशियो ऑफ पी क्यू। सो बाय यूजिंग द आपके पास रेशियो फार्मूला, आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर ए प्लस पी ऑफ पोजीशन वेक्टर बी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। जी क्यू क्या है आपके पास, क्यू यहाँ पे आपके पास क्या है 3 है, तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन आ गया, और यहाँ पे क्या है पी किससे मल्टीप्लाई होगा, ये सामने आपके पास जो वेक्टर है जो बी है इससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो 2 3 6, ये 6i आ गया, 3 3 -9j प्लस 4 3 12i और 4 2 +8j आ गया, और 4 + 3 7 आपसे डिवाइड हो रहा है, तो 6i में 12 करें तो 18i आ गया आपके पास, और -9 + 8j तो -j आपके पास ये आंसर आया। तो बेसिकली जब आप 7 को दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 18/7i और -1/7j। तो ये वो आपके पास पोजीशन वेक्टर r है इस p पॉइंट का, जो OP आप बेसिकली आपने फाइंड की, इसको आपने OP को r का नाम दिया था, वो ये पोजीशन वेक्टर है जो कि CD को 4:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह बेसिकली आपने यूजिंग जो आपके पास फार्मूला था, रेशियो फार्मूला, उसको यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए आपने एक लाइन को जो एक पॉइंट डिवाइड कर रहा था गिवन रेशियो के अंदर, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया। जी बेटा, इस सेकंड पार्ट में भी हमने क्या करना है कि बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला हमने एक जो पॉइंट पी है जो डिवाइड कर रहा है एक लाइन को, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो देखें इसमें क्या है कि आपके पास पॉइंट ई है, उसका पोजीशन वेक्टर 5j दिया हुआ, मतलब कि ये पॉइंट ई है, उसका पोजीशन वेक्टर जिसको हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया था, उसकी वैल्यू क्या है 5j है। ओके, मतलब कि आई वाला इसमें जो कंपोनेंट है वो नहीं है, वो 0 है। सिमिलरली जो पॉइंट एफ है, आपके पास एक पॉइंट एफ है जो उसका पोजीशन वेक्टर बन रहा है ओ एफ, जो है उसको हमने बी का नाम दिया था, वो आपके पास क्या बन रहा है 4i+j, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। और हमारे पास एक पॉइंट पी है जिसको हमने लेट किया हुआ है कि वो हमारे पास r पोजीशन वेक्टर है, तो इसके हमें बेसिकली क्या है, इस पोजीशन वेक्टर को हमने फाइंड करना है। सो a इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट e, और a is equal to 5j अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, एंड b इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ f, इस पॉइंट का जो हमने b कंसीडर किया था। सो b पोजीशन वेक्टर इज 4i+j, ये भी गिवन है आपको, और आपने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर जो है p का फाइंड करना है, वो बेसिकली r आपने कहा हुआ है वो आपने फाइंड करना है। तो सेम आपके पास है जो रेशियो गिवन है, वो क्या बेटा रेशियो गिवन है 2 5, मतलब कि ये 2 है जो कि बेसिकली p को रिप्रेजेंट कर रही है, और 5 के आपके पास q को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें पता है कि जो q है आपके पास वो a से मल्टीप्लाई होता है, और जो p है वो b से मल्टीप्लाई होता है, और p + q आप इसको डिवाइड करते हैं। सो p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 5 है। अगेन आपने फार्मूला लिखा जो आपके पास रेशियो फार्मूला है, q की जगह आपने लिखा 5, और ये जो a वेक्टर है बेसिकली जो आपके पास OE का वेक्टर है वो 5j, ये आपके पास यहाँ आ गया, +2 यहाँ आपकी p की वैल्यू आ गई, और प्लस ये आपके पास जो वेक्टर b है बेसिकली वो आपने 4i+j, ये आपने पोजीशन वेक्टर ये लिखा, और नीचे 5 + 3 8 आ गया। तो 5 5 25j प्लस 8i, ये 2 2 2 4 8 + 2j। अब आपके पास i कंपोनेंट है ही नहीं, एक ही i कंपोनेंट, तो 8i वैसे ही रहेगा, और 25 + 2 27, और नीचे आपके पास क्या है 5 प्लस ये 2 है बेटा, सॉरी 5 + 2 है तो 7 बनेगा। तो आपके पास 8/7i और 27/7j, ये आपके पास वो r पोजीशन वेक्टर है जो बेसिकली इस पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर है OP का। तो ये आपको जो EF को 2 और 5 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह बेसिकली आप बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला आप क्या करते हैं, कोई एक अगर लाइन सेगमेंट है उसको कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो के अंदर, तो आप उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारी इसकी एप्लीकेशन है कि बेटा आप कहाँ यूज कर सकते हैं इसको। तो ये दो हमने पार्ट किए हैं। तो आपका प्रैक्टिस वर्क क्या है बेटा, कि एग्जांपल नंबर 5 है आपकी बुक के अंदर, पेज नंबर 333 पे, तो उसको आपने देखना, उसको करना खुद बेटा। और एक्सरसाइज 7.1 जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि क्वेश्चन इजी है लास्ट क्वेश्चन की तरह, वो भी आपने खुद देखना है बेटा। अब हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपके पास अगेन रेशियो और सेकंड फार्मूले के बारे में आपको बताया गया है, तो इससे मजीद आपको क्लियर होगा ये जो आपके पास रेशियो फार्मूला है। तो आए वीडियो देखते हैं बेटा हम।
Hello my dear friends, welcome back once again, and here we're going to learn section formula now in the vector chapter. Alright, we have already learned what is section formula in the coordinate geometry section, and there's what we learned, and here what we're going to learn is pretty same, but we're learning here now in vector way. Right, again here the section formula are two types. One will be internal section and another will be external, right? And as usual, I'm telling you again here, just giving directly clue. In internal section, the internal section formula, there will be positive sign, and in external section the sign will be negative. All right, now in this video we will learn about the internal section, and in the next video we'll learn about the external section. I'll put the link somewhere in the video. Click on that and you'll get the external section. All right, the formula derivation. All right, so let's talk about the internal section and how do we find out the internal section formula in the vector analysis. For that, I have to draw a small figure, a small picture. All right, so let me draw that. So as you can see in the figure, we have a line PQ, and that line PQ has been divided by line OR, right here, in ratio, let's say M ratio N. Okay, I mean to say here, if it's something like this, if this is a line, then here is a point. That point is dividing this whole line into some ratio. All right, let's say this is 3 section and this is 2 sections, so it's a ratio. And let me tell you here, this point of division, the point of section, is inside this line, is in the line. Here also you can see this point which is dividing the line is in the line, so that is why this is called internal section. And if this point is outside, then that time that will be called external section. We'll be talking about that in the next video. All right, so this is internal section. All right, so let me give some name also. Let's say OP vector OP is vector A, vector OQ is vector B, and vector OR, let's say vector R. Right, so here what I'm going to imagine, let's imagine that vector OP is vector A, and vector OQ is vector B, and vector OR is vector R. Right, let's imagine like that. So here we have to find out vector R, which is dividing the line PQ, all right, in certain ratio, okay, which is M ratio N. So here given things, what is given here, given to us to proceed, is only few things. That is PR divided by RQ is M ratio N. M and N are some scalar numbers. All right, some scalars also you can see. In the figure you can see, this is M section and this is N section. All right, and this is the point of intersection. Okay, so let me write this in vector way. So it is going to be now vector PR divided by vector RQ. And now further, what is PR? Okay, what is PR? What is PR? What is PR? You can find out the value of PR by triangle law of vector addition. In the triangle law of vector addition, what we have learned, that if the two vectors are represented by the two sides of the triangle, side 1 and side 2, in magnitude and in direction, then the third side of the triangle taken in opposite order represents the resultant of those two vectors. So I mean to say, the PR vector is representing as a resultant in magnitude as well as in direction as the addition of PO plus OR. Right, so PR can be written as PO plus OR. Right, so it's going to be now PO plus OR, and then divided by, now let's talk about the RQ. So RQ, okay, RQ, we need to find out RQ. Again, we're going to apply the triangle law, so this will be RO plus OQ. All right, so it's going to be RO plus OQ, that's equals to now M over N. Let me take you to here. Okay, so now PO, what is PO? What is PO? OP equals to A, so PO will be negative of A. All right, and OR is here BR. All right, so it's plus R divided by RO. OR is R, so RO will be negative of R, so it will be negative of R, and then plus OQ. All right, so what is OQ? That is B equals to now M over N. It's M over N. Further, it's going to be now N times A but with negative sign, and N times R, and it will be now M times R again, M times R but with negative sign, and M times vector B, M times vector B. Okay, so now what we're going to do, we are going to find out the vector R. So let's put all the R related things in one side, these two. All right, this is negative, so when it will go this side it will be positive. All right, so it's going to be now M times vector R plus N times vector R, that is equals to M times vector B, which is here, and this negative N times vector A I'm putting into the another side, so it will be positive N times vector A. Okay, so what is the good news? The good news is you can take the R common. All right,
So I'm going to take r common, and then I will be left with m plus n, and this side I have m times b plus n times a. Let me shift a little down, and here vector r is going to be now m times b plus n times a divided by m plus n, which can also be written as or. All right, and this is called internal section formula. All right, so to find out the vector which divides some line in certain ratio internally, then you can easily find out by this internal section formula. All right. जी बेटा, आपने देखा कि किस तरह जो रेशियो फार्मूला प्रूव किया है, इसमें जस्ट उसने जो वैल्यूज हैं, मतलब कि रेशियो हमने पी क्यू फाइंड ली थी, उन्होंने एम और एन ले ली रेशियो, और इसी तरह जो कोऑर्डिनेट्स थे उसके पॉइंट जो है डिफरेंट ले लिए, तो इस तरह बाकी जो सेम जो हमने प्रूव किया इसी तरह। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी वैल्यूएशन ये है कि आफ्टर दिस लेक्चर यू विल एबल टू, आप ये बता सकेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिफाइन कर पाएंगे, और आल्सो आपसे पूछा जाए कि हाउ यू विल फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो, तो आप किस तरह इसको फाइंड कर पाएंगे, ये भी हमने आज डिस्कस कर लिया कि बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला। सो बेटा, ये आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह एक लाइन को अगर एक पॉइंट डिवाइड करे उसका हम पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, और हमने आज रेशियो फार्मूला सीखा। जो भी आज हमने डिस्कस किया बेटा, इसको तो आपने गो थ्रू करना है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।